Hello friends, I hope you are fine and safe at your home. In today's session, I would like to discuss the concept of dematerialization and the rematerialization. Friends, in the immediate session before the declaration of holiday, I had discussed the concept of ADR and GDR, that is American Depository Receipt and Global Depository Receipt. I hope you all are comfortable with the concept of ADR and GDR. Now the next topic for discussion is the concept of dematerialization and the rematerialization. Now friends, before I start discussing in detail about the dematerialization and the rematerialization, I would like to highlight few points about the equity shares. Friends, in the initial lecture, I had mentioned that the equity share of the company is movable property according to Sales of Goods Act. It's a goods and easily transferable. Even as far as Companies Act is concerned, it is clearly mentioned that the equity shares are a freely transferable instrument. So, being owner of the equity share, I can transfer it to any person at the price decided between me and the buyer mutually. Now, at the same time, Companies Act provides the detailed methodology through which ownership of the shares can be transferred from one person to other. Companies Act 2013 provides the procedure to be complied with in order to transfer the ownership of equity shares. If, let's say, I am the owner of 100 equity shares of a company and I want to transfer the 100 equity shares to other person, what procedure I am supposed to comply with? First, I need to execute share transfer deed. बट ऑब्वियस क्योंकि मैं मेरी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, सेम लाइक अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग उस केस में ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हैं, सेल डीड बनाते हैं, इन द सेम मैनर वी हैव टू एग्जीक्यूट शेयर ट्रांसफर डीड. It's a written contract executed between buyer and seller to effect the sale of shares. So the first step is execution of share transfer deed. Companies Act provides the specific format. SH4 is the format in which parties to the transactions are supposed to execute share transfer deed. After execution of share transfer deed, parties to the transactions are under obligation to submit the share transfer deed duly executed with the registered office of the company. Immediately after receipt of share transfer deed, company will start verification of documents. आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, आपने एक तो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट सबमिट किया होगा, शेयर ट्रांसफर डीड आपने सबमिट किया होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाएगा. कंपनी विल एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, द करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर्स गिवन इन द शेयर ट्रांसफर डीड, द वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर देयर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज देयर इन द शेयर ट्रांसफर डीड. अगर ये सब कुछ सही रहता है तो उसके बाद कंपनी जो है बोर्ड मीटिंग बुलाएगी और बोर्ड मीटिंग में शेयर ट्रांसफर का जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा. एंड देयर आफ्टर कंपनी विल इश्यू सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ परचेजर, दैट इज इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी. सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जो स्टेप मैंने अभी डिस्कस किए उसको अगर मैं समराइज करूं, मेरे पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं और मैं किसी को बेचना चाहता हूं, तो ऐसे केस में उस शेयर्स को सबसे पहले मुझे SH4 एग्जीक्यूट करना होगा, शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करनी होगी. शेयर ट्रांसफर डीड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट मुझे कंपनी में सबमिट करना होगा. कंपनी को जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, कंपनी विल स्टार्ट एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड इफ एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट
company will call the board meeting, and in the board meeting company will approve the transfer. एंड वो ट्रांसफर अप्रूव होने के बाद नए सर्टिफिकेट्स जो है वो इश्यू किए जाएंगे. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी हैज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस विद इन 30 days. सो कंपनीज एक्ट भी 30 दिनों का टाइम देता है. सो ये शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में दिया गया है. जैसा प्रोसेस आपने सुना, आपको सुनते ही लगा होगा कि ये जो प्रोसेस है वो लेंदी प्रोसेस है. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड इवन कंपनीज इट गिव्स 30 days टू द कंपनी टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस. नाउ नंबर 2, लिक्विडिटी. लेट्स से मेरे पास कंपनी के 100 शेयर्स है, मैं किसी और को बेचना चाहता हूं, मुझे खरीदने वाला भी मिल गया. मैं खरीदने वाले के साथ डील किया, उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसके नाम पे जो शेयर्स होंगे वो 30 दिन के टाइम में उसके नाम पे हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी विल फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड इट विल ट्रांसफर द शेयर्स इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी विद इन 30 days. Now the other person who had purchased shares from me is in need of funds. Let's say 3 दिन पहले मैंने शेयर ट्रांसफर डीड साइन किया, उसको हैंड ओवर कर दिया, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट उसको हैंड ओवर कर दिया, उसने मुझे पेमेंट दे दिया, उसने कंपनी में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए. कंपनी अभी तक वेरिफिकेशन के लिए पहुंची हुई है, वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है. आज 3 दिन हो गए. उस बंदे को जिसने मेरे से शेयर्स खरीदे हुए हैं उसको पैसों की जरूरत है. ही इज नीड ऑफ फंड. नाउ ही कांट सेल द शेयर्स. व्हाई? बिकॉज शेयर्स आर नॉट येट इन हीज ओन नेम. शेयर्स तो अभी भी मेरे नाम पे है, उसके नाम पे तो अभी ट्रांसफर ही नहीं हुए हैं. तो ऐसे केस में अगर वो शेयर्स बेचना चाहता है तो वो नहीं बेच सकता. क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि शेयर्स जो है वो अभी तक उसके नाम पे हुए ही नहीं है. नाउ इस केस में उसको लिक्विडिटी का इश्यू होगा. नंबर 3, मान लीजिए कि शेयर सर्टिफिकेट जो है वो मेरे पास पड़े हुए हैं. शेयर सर्टिफिकेट काफी सालों से मेरे कबर्ड में पड़े हुए थे. आज मैं बेचना चाहता हूं. मैंने जब वो शेयर सर्टिफिकेट निकाले, मुझे पता चला आधा सर्टिफिकेट चूहा खा गया है. Now, it is of no use. No one will rely on the half certificate. What I have to do? I have to approach company. I have to request for duplicate certificate, etc. Then another issue. Let's say मेरे पास कंपनी के शेयर्स है ही नहीं, फिर भी मैं आपको बेचना चाहता हूं. मैंने क्या किया? फोर्ज्ड सर्टिफिकेट बनाया, फोर्ज्ड सिग्नेचर किया, और वो फोर्ज्ड साइन करके मैंने किसी और को शेयर्स दे दिए. हालांकि फोर्जरी जो है वो आईपीसी के तहत वॉइड होगी, आई डू एग्री. लेकिन जो पूरा साइकिल चलता रहेगा उस फोर्जरी के ऊपर, जब तक पता नहीं चलता तब तक जितने भी लोग इन्वॉल्व है वो इस पर्टिकुलर केस में बाय डिफॉल्ट फंस जाएंगे. तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो है उसके काफी सारे ड्रॉबैक्स है. ड्रॉबैक्स अगर मैं 1 by 1 आपको गिनाऊं. नंबर 1, अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो लेंदी प्रोसेस है. नंबर 1. नंबर 2, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ उसको डिस्ट्रॉय होने का खतरा है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको संभाल के रखना पड़ेगा, वो एक मेजर इश्यू है. द थर्ड ड्रॉबैक इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ forged transfer or improper transfer. The next issue is the issue of liquidity. In case of physical transfer, the share certificate in the name of transferee will be issued by the company after the due verification process, and the process is a lengthy process. It may take 5 days, 10 days or maximum 30 days as given under Companies Act. So लिक्विडिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ये सारे इश्यूज को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया कि जो सारे इश्यूज हैं वो क्यों है, इसको एग्जामिन किया गया. आफ्टर द ड्यू एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट कम्स टू द कंक्लूजन दैट if government introduce the facility of keeping and transferring shares in electronic form, then
these issues can be resolved. The transfer process can be made bit faster. The liquidity can be provided. The transparency can be ensured. So, in order to overcome with the drawback there in the physical system or physical share transfer system, government has introduced the new concept called dematerialization. So, dematerialization is a process of converting physical shares into electronic shares. आपके पास जो भी फिजिकल शेयर्स हैं, वो फिजिकल शेयर्स को गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डीमटेरियलाइजेशन. फ्रेंड्स, डीमटेरियलाइजेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बैंकिंग सिस्टम. जिससे आप बैंक में जाते हैं, आपके पास लेट्स से 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, हार्ड कैश है आपके पास. आप बैंक में गए, आपने कैश काउंटर पे 10,000 रुपये दिए. 10,000 रुपये देने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए. वो मैसेज आने के बाद आप अगर किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट हैविंग द हार्ड कैश इन योर हैंड. इन द सेम मैनर आपके जो भी फिजिकल शेयर्स हैं उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और उसके बाद आपके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे आप नए शेयर्स खरीदते हैं या पुराने शेयर्स बेचते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस आपके होंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो बुक एंट्री के थ्रू किए जाएंगे. देयर इज नो नीड टू हैव फिजिकल शेयर्स, देयर इज नो नीड टू एग्जीक्यूट शेयर ट्रांसफर डीड, देयर इज नो नीड टू अप्रोच कंपनी. All the transactions after dematerialization will be carried out in electronic form. इससे जो लूप होल्स थे फिजिकल शेयर ट्रांसफर के साथ या फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ वो सारे खत्म हो गए. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, जो टाइम कंजप्शन जो होगा वो हार्डली 1 या 2 दिन का होगा. विद इन 1 or 2 days you will be given credit of the shares. Number 2, लिक्विडिटी. अगर मैंने आपसे शेयर्स खरीदे हुए हैं, आज मैंने खरीदे, मैं अगले सेकंड पे वो शेयर्स बेच सकता हूं बिकॉज इमीडिएट ट्रांसफर होगा. इमीडिएट आपके अकाउंट से शेयर्स डेबिट होकर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे. सो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. जो ट्रांसफरेबिलिटी का इश्यू था, जो टाइम कंजप्शन का इश्यू था, वो सॉल्व हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब क्योंकि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं तो उसको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को संभालने का जो इश्यू था वो भी वहां पे खत्म हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्ज ट्रांसफर, फोर्ज साइन करके जो पॉसिबिलिटी थी ट्रांसफर की वो भी खत्म हो गई क्योंकि अब जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है. सो डिमटेरियलाइजेशन का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इट इज जस्ट टू ओवरकम विद द इश्यूज रिलेटिंग विद द फिजिकल शेयर्स. डिमटेरियलाइजेशन का जो भी कंसेप्ट है वो डिपॉजिटरीज एक्ट से गवर्न होगा. Depositories Act is the legal framework that governs with the concept of dematerialization and rematerialization. Now, before I conclude, I would like to point out that the depository system or dematerialization is the process of converting physical shares into electronic form. आपके पास जो भी शेयर, जिस भी कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में है, आपके पास जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो शेयर सर्टिफिकेट आपसे ले लिया जाएगा और उसके बदले में उतने ही शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे. सो फिजिकल शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन कहा जाएगा. डीमटेरियलाइजेशन के बारे में और ज्यादा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. टिल देन, स्टे एट होम, बी सेफ एंड एंश्योर सेफ्टी ऑफ योर्स एंड योर फैमिली. थैंक यू.